आज के समय में भक्ति में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो गया है। हम लोग पहले पैम्पलेट यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर में छपवाते थे, तो उसी प्रकार से अगर हम भक्ति के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करें तो उसमें बुराई क्या है? कॉलेज जाने की उम्र में आप अध्यात्म से जुड़ गई हैं। क्या आपका मन नहीं करता वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का, पार्टीज करने का, क्लबिंग करने का? ऐसी इच्छा नहीं हुई। और कहीं तो वृंदावन धाम है हमारे मध्य की, जो सरकार का जो इतना सुंदर धाम बनाया गया है, उसकी वजह से मुझको आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझको पार्टी में जाना चाहिए, कि क्लब में जाना चाहिए। हमेशा से मुझको ऐसा लगा कि जितना हो सके उनके मंदिरों के दर्शन करें। आपकी ना लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा शादी से भाग रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कोई मुझे नहीं समझता। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, बेटा कह रहा है कि मेरी बात नहीं सुन रहा है। पर हद तो तब हो जाती है कि जब भगवान कह रहे हैं कि मैं गीता में बोल बोल करके, वेदों में बोल बोल करके थक गया कि भक्त नहीं सुन रहा है, और यहाँ पर भक्त कह रहा है कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। कथावाचिका बनकर और स्टूडेंट लाइफ को, दोनों को बैलेंस करना कितना ज़्यादा टफ है आपके लिए। भागवत महापुराण पढ़ने से और अपनी रियल लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, वो पढ़ने से मुझे और करने से, और यहाँ तक कि जब मैं कथाओं में जब जाती हूँ, कई प्रकार के मुझे लोग मिलते हैं, कई प्रकार की मुझे उन लोगों की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। जब मुझको मेरे ऊपर कोई भी परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझको फिर उन लोगों को सोच करके फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो उस समय मैं सोचती कहीं ना कहीं ये भागवत जी की ही इतनी बड़ी कृपा है कि आज मैं किसी दुविधा में पड़ने से पहले ही उसको सोल्यूशन निकालूं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. काम
कि किशोरी का अर्थ अगर हम क्या कहेंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी राधा रानी सरकार को किशोरी जू भी कहा जाता है। किशोरी का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो युवावस्था में होते हैं, कहते हैं ना किशोर अवस्था या वो युवावस्था, तो उसी को किशोरी अवस्था भी कहते हैं, यानी कि फीमेल टाइप में अगर हम कहें तो उसको हम किशोरी कहेंगे। दूसरी तरफ हमारे ब्रज में जितनी भी सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हुई, चाहे हमारी राधा रानी हुई, तो वो किशोर अवस्था में है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 9 साल की, 8 साल की, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। तो किशोरी का अर्थ है कि मैं यहाँ पर ये दर्शाना चाहती हूँ कि मैं भी एक श्री जी की दासी हूँ, श्री जी की सहचरी बनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना किशोरी नाम दर्शाया। जी, जैसे आप ये देख लो कि 2 हैं महिलाएं, कथावाचक और कथावाचिका। महिलाओं को कथावाचिका कहा जाता है और पुरुष को कथावाचक कहते हैं, तो उनके नाम के आगे आचार्य कहा जाता है। और मैंने अक्सर ऐसी महिलाओं को देखा है जो अपने नाम के आगे किशोरी जोड़ती हैं, तो आचार्य और किशोरी दोनों में बहुत अंतर देखा जाता है, तो क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, जिस तरीके से हम लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं और जब पीएचडी करते हैं, पीएचडी मतलब किसी स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना, तो उसी तरीके से उसके बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना, कि हम लोगों ने जैसे म्यूजिक से किया हो, चाहे हम लोगों ने संस्कृत से किया हो, चाहे हम लोगों ने इंग्लिश से किया हो, मतलब कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट अगर हमने लिया और उस पर हमने कोई स्पेशलाइजेशन काम किया है, तो वो जो चीज है वो हमको उसको क्या हो जाता है, उपाधि मिल जाती है, एक हमको टाइटल मिल जाता है। उसी तरीके से जो शास्त्री है, शास्त्री को हम बीए कहते हैं संस्कृत में, और जो आचार्य है वो होता है एमए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आचार्य और शास्त्री ऐसे ही नहीं लगाते हैं, जो भी आचार्य और शास्त्री लगाते हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि एक तरीके से उन्होंने संस्कृत में बीए और एमए दोनों कर रखी है। तो पुरुष के लिए अलग शब्द है और महिलाओं के लिए क्या अलग शब्द बना है, आचार्य? और जैसा कि आपने बताया कि महाराज हैं, तो कैसे, तो महिलाओं का क्या कहा जाता है? महिलाएं भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं आचार्य नहीं लगाती हैं, शास्त्री नहीं लगाती। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से बीए तो गर्ल्स भी करती हैं, बॉयज भी करते हैं, तो उसी तरीके से आचार्य और शास्त्री भी गर्ल्स और बॉयज दोनों करते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना आचार्य और शास्त्री लगा सकते हो। आज हमें ये पता चला कि महिलाएं भी अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकती हैं। जी, तो आप अभी कथावाचिका बन चुकी हैं, और मुझे जहाँ तक कि पता है कि आप जब आप बहुत छोटी थी, करीब 6 साल की थी, तभी से आपने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आपने अपना करियर सिंगिंग की ओर क्यों नहीं किया? देखिए, पहले तो वास्तविक में कहा जाए तो मैं सिंगिंग की लाइन में ही थी पहले भी, और मेरा बचपन से ही फोकस जो है वो म्यूज़िक के प्रति काफ़ी ज़्यादा रहा है, और बचपन से ही मुझे म्यूज़िक में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट भी आया है। कहीं ना कहीं मुझको ठाकुर जी की कृपा कहा जाए, किशोर जी की कृपा कहा जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री मोदी जी के सामने मुझको एक बार ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि मैं उनके सामने एक बार गा भी चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि मैं जब इस लाइन में आने वाली थी, यानी कि जब मैं अपने 12th क्लास में थी, तो मैं ठाकुर जी से यही कहती थी कि आप मेरी लाइन खुद चूज करो। मुझे 12th तक कभी भी ये बात पता नहीं थी कि मुझे क्या बनना है या मुझे क्या आगे करना है। मैं बस उनसे एक चीज़ कहती थी कि मुझको अध्यात्म में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मैं जॉब लाइन में जाती हूँ तो मेरा जो अध्यात्म लाइन है वो छूट जाएगा, उतना मेरा फोकस नहीं रहेगा। मुझको म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मेरा म्यूज़िक भी छूट जाएगा अगर मैं जॉब लाइन में जाती हूँ। तो ऐसा क्या मैं कर सकती हूँ कि जहाँ पर मैं अध्यात्म से भी जुड़ी रहूँ, अपने संगीत से भी जुड़ी रहूँ। तो देखिए, भागवत जी की कृपा कितनी बड़ी है। अध्यात्म में संगीत सबसे बड़ा कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामवेद का मतलब क्या है, सामवेद में पूर्ण रूप से संगीत का ज्ञान बताया गया है। तो जब हम लोग भागवत जन में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग भजनों के माध्यम से, पदों के माध्यम से, ठाकुर जी के भावों के माध्यम से अपना संगीत भी प्रदर्शित कर देते हैं और अपने भाव भी प्रदर्शित कर देते हैं। जी, तो आप कथावाचिका कैसे बनी? कहाँ से ये अंदर से मतलब भावना है कि नहीं अब मुझे अध्यात्म की ओर जाना चाहिए? क्योंकि अभी जो आपकी उम्र है ये कॉलेज जाने की उम्र है, और कॉलेज छोड़कर आप पूरी तरह से कथावाचिका बन गई। अगर मैं आपको वास्तविक में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो मैंने अभी अपनी कॉलेज लाइफ नहीं छोड़ी है। मेरा अपनी स्टडी भी अपनी चल रही है। कौन से क्लास में, कौन से? मेरा अभी बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, और क्या कहते हैं, मैंने संगीत में भी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रभाकर और प्रवीण दोनों कंप्लीट किए, यानी कि बीए और एमए वो भी मेरी कंप्लीट हो तो चुकी दोनों है। एक साथ कर रही हैं। हाँ, मैं अपनी कथा लाइफ को भी अपने साथ लेके चल रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी मेरे साथ चल रही है। तो कथा की लाइन में आने को कहा जाए तो मेरे जीवन में एक तरीके से कहा जाए तो वो ट्रेजेडी था पूरा। मतलब मेरे पिताजी के जाने के बाद ही मैं इस लाइन में उतरी हूँ, कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रेरणा से मुझको ये आज पिताजी के स्थान पर मुझे बिठाया गया, और सभी बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो अपने पिताजी की जो गद्दी जो आपको विरासत में मिली, इसको कैसे संभाला? कौन से साल से आपने शुरुआत की? मैंने 2021 यानी कि 2021 अप्रैल में ही मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ था, और उस परिस्थिति में भी मैंने जैसे तैसे, अब ठाकुर जी की कृपा कही जाए कि श्री जी की, भागवत जी की कृपा कही जाए, गुरुजनों की कृपा कही जाए, उसके बाद ही मैंने नवंबर से ही श्रीमद् भागवत की प्रेरणा तो से सबसे पहली कथा आपने कहाँ की? श्री धाम वृंदावन। कभी मन में डर नहीं आया कि पता नहीं मैं इतने सारे लोगों को बीच में कैसे लोगों को फेस करूंगी, किस तरह से कथा कहूंगी? तो कहीं से आपने कोई ट्रेनिंग लिया? वास्तविक में बताऊं तो मेरी जो, मैंने जैसे कहा, मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं म्यूजिक लाइफ में रह चुकी हूँ, तो म्यूजिक में मैंने इतना ज्यादा स्टेज पे मतलब परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ, इतना स्टेज हो गया मेरा हर चुका लेकिन है। बात करें सिंगिंग और कथावाचक में, दोनों में बहुत अंतर है। श्रीमद् भागवत करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चीज है। हाँ, तो बहुत कैसे आपने इस चीज की भूमिका को कैसे निभाया? मैं इस बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरी श्री जी की कृपा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक माध्यम हूँ, मैं एक छोटा सा तिनका हूँ, बाकी तो सब श्री जी करा रहे हैं। और वास्तविक में बताऊँ, उस जो गद्दी है, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि भागवत इतनी ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि कलयुग को तारने वाली ही श्रीमद् भागवत है। कहते हैं ना, सप्ताह यज्ञ चंद्र कलौ पुनन्ति, यानी कि इस संसार में यानी कि जो मृत्यु का त्रास है उसको हरने वाली ही श्रीमद् भागवत है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो पीरेण भाषितम। इसका मतलब इस संसार में कलयुग के मनुष्यों को जो हरने वाली है, यानी कि उनके त्रासों को हरने वाली है, वो ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आप ये सोचिए, जिस गद्दी को दुनिया के लोग पूज रहे हैं, और जहाँ पर हम बैठेंगे तो वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक एक शक्ति दे रही है। जब हम लोग बोलते हैं ना भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, तो व्यास का मतलब जब कोई व्यास गद्दी पर बैठता है उसकी जय नहीं बोल रहे, उस व्यास गद्दी की जय बोलते हैं। तो जैसा कि आप बार बार कह रहे हो कि व्यास, तो व्यास का अर्थ क्या है? क्या है व्यास? ये जो गद्दी है, इस गद्दी को हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा, मतलब उन्हीं के नाम पर इसको स्थापित किया गया है। और ये गद्दी जिसका प्रभाव मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से उस गद्दी पर बैठा जाता है, मैं जैसे ही बैठती हूँ, उनकी प्रेरणा से जैसे ही उस गद्दी पे बैठती हूँ, तो उस समय ना तो मुझे कुछ होश रहता है, ना कुछ मुझे पता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। तो वास्तविक में कहा जाए तो ये सब कुछ ठाकुर जी की ही प्रेरणा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता, तो श्रीमद् भागवत गीता और गीता में क्या अंतर है? क्योंकि लोगों को आज तक सही मायने में पता ही नहीं, इवन मैं भी नहीं जानती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता होता है या फिर क्या होता है। मैं कई बार कई कथाओं में जाती हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं, 7 दिन कथा होती है, और अंत में आकर के लोग मुझसे आकर के कहते हैं कि देवी जी आपने बहुत अच्छी मतलब श्रीमद् गीता सुनाई, भगवत गीता सुनाई। लोगों को यही नहीं पता है आजकल कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् गीता में क्या अंतर है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो हमारे साक्षात ठाकुर जी का मुख है, यानी कि जो भगवान ने इसमें ये बताया है कि भगवान ने क्या क्या कहा। और बात की जाए श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान ने क्या क्या किया, यानी कि ये भगवान का हृदय है, ये पुराण है। जैसा कि आपने बताया ये जो कथा है ये 7 दिनों का होता है, तो क्या 7 दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण पूरा हो जाता है? संपूर्ण अध्याय पूरे हो जाते हैं? देखिए, जब हम लोग भागवत जी का महात्म्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 7 दिन की ही विधि बताई गई है।
जैसे 7 दिनों की जो विधि बताई गई है, तो इसमें सबसे मुख्य दिन कौन सा होता है जिस दिन लोगों को कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप एक भी दिन का कथा मिस मत करो, जब अगर आप सुनने बैठे हो तो पूरा करके उठो। ऐसा क्यों कहा गया है और किस दिन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए? वैसे तो देखिए, वास्तविक में कहा जाए, अब आपसे कहा जाए, अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लेते हो, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। उसी तरीके से पूरी कथा, जिस तरीके से अगर मैं आपको आज के जनरेशन के हिसाब से एग्जाम्पल दूँ, आप जैसे मूवी देखते हो, मूवीज में अगर आप बीच में से देखोगे या लास्ट में से देखोगे या पहले से देख करके बीच में छोड़ दोगे, क्या आपको पूरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। उसी तरीके से जब तक हम पूरी कथाओं को नहीं सुनते हैं, 7 दिन नहीं श्रवण करते हैं, तब तक हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि वास्तविक में हम क्या सुनने आ रहे हैं, कि भागवत क्या है। जो श्रीमद् भागवत पुराण में कितने टोटल स्कंद होते हैं? इसमें 12 स्कंद। आपका कोई फेवरेट स्कंद? देखिए, वैसे तो संपूर्ण भागवत में अगर ये कहा जाए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, ये प्रत्यक्ष भगवान के अंगों का वर्णन किया गया है, एक एक अंग के बारे में बताया है, हर एक अंग, हर एक स्कंद में भगवान के हर एक अंगों का वर्णन दिया गया है। तो अगर आपसे कहा जाए, इंसान से कहा जाए कि तुमको कौन सा अपना हाथ पैर प्यारा है तुमको, तो ये नहीं कह सकता ना, उसको सभी अपने पूरे अंग प्यारे हैं। तो उसी तरीके से वैसे तो उसमें कोई फर्क नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक बात हो जाती है इष्ट वाली, यानी कि एक झुकाव जिसका ज्यादा रहता है। तो मेरा जो वास्तविक में जो सबसे ज्यादा झुकाव है वो दशम स्कंद की ओर है। क्यों है? क्योंकि दशम स्कंद में बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी के बाल लीलाओं की वर्णित किया गया है। क्योंकि देखिए बाकियों में तो, बाकी स्कंदों में बड़ी ही ज्ञान की बातें बताई हैं, खूब दूर दूर की मतलब वेद वेदांतों की बातें बताई गई हैं, ऋचाओं की बातें बताई गई हैं। लेकिन ये जो दशम स्कंद है, जहाँ पर साक्षात हमारे ठाकुर जी जो ब्रज में लोटपोट कर रहे हैं, ब्रज की रज में लौट रहे हैं, नंगे पैर हमारे 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, बिना किसी पादुका के गायों को चराते हुए। तो जब इन लीलाओं को पढ़ते हैं और जैसा हम खुद ब्रज में रहते हैं, तो उन बातों को सोच करके और उन कथाओं को सुन करके जब अनुभव करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वास्तविक में वो लीला अभी भी हो रही है। आप तो खुद एक युवा पीढ़ी हो और आप कथा भी करते हो, तो आपकी भीड़ में किस तरह के लोग आपकी कथा को सुनने के लिए आते? क्या युवा पीढ़ी के लोग उसमें शामिल होते हैं? जी, बल्कि मैंने एक चीज देखा, युवा पीढ़ी ज्यादा आती है। क्योंकि देखिए आजकल हम लोगों को ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को मतलब अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि वास्तविकता में देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि एक युवा पीढ़ी को हमेशा हर चीज के पीछे रीजन चाहिए, कि अगर हम लोग भगवान, हम लोग सुनते हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर हमको मंदिर जाना क्यों जरूरी है? कि जिस तरीके से एक युवा पीढ़ी को क्या चाहिए होता है, एक उसको हर चीज के पीछे रीजन चाहिए। अगर आप उनको रीजन बता दो तो उनका क्या होता है, विश्वास अटल हो जाता है। उनको हर चीज के पीछे रेफरेंस चाहिए। तो उसी तरीके से बस अगर हम लोग अपने हर घर में रामायण रखेंगे, हम लोग गीता पढ़ेंगे, तो हमारे पास हर चीज का, हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जब हमारे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा तो हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। और देखिए सबसे मुख्य बात होती है संस्कार। और आजकल क्या है, माता पिता अपने बच्चों को संस्कार से ज्यादा पहले क्या सिखाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। अगर हम लोग जॉनी जॉनी यस पापा भी सिखाएं और उसके साथ साथ और हम बच्चे को अगर ये भी सिखाएं कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कार्टून्स में, हम लोग पहले कृष्ण जी की कथाएं आती थी, हम लोगों के टाइम पे कितना कुछ आता था, तो हम लोग क्या थे, उससे अटैच हो गए थे। तो उसी तरीके से आजकल के बच्चों को मतलब मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया और मेरे मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा जो है, क्या वो सिर्फ कृष्ण जी से ही रिलेटेड है या फिर कुछ और भी है? देखिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल और केवल कृष्ण जी की कथा है,
लेकिन ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है प्रथम स्कंद में, तो वो क्या कहता है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर कहीं पे ये तो लिखा नहीं है कि कृष्णम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि या राधा परम धीमहि, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या कहा है? सत्यम परम, यानी कि सत्य को प्रणाम किया है। सत्य कौन? सत्य का मतलब होता है अटल, यानी जिसको ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही कोई बना सकता है। सत्य हमेशा ही अटल रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रत्येक देवी देवता को प्रणाम किया गया है। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का अगर आप कहो कि क्या अर्थ है, तो आपको मैं वास्तविकता में बताऊं तो उसके कम से कम 250 अर्थ है। कोई अगर ये कहे कि इसका यही अर्थ है पूरा पूरा निकाल के दे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके 250 अर्थ हैं कम से कम। आप आराम से निकालोगे, एक एक शब्द के कम से कम 1000 अर्थ हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वर्णन है कि अगर हम पूछें कि यहाँ पे कृष्ण जी की कथा है, तो देखिए, जब हम लोग प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक पढ़ते हैं, तो हमको ये पढ़ने में आता है कि वहां पर भगवान के 24 अवतारों की पूरी कथा बताई गई है। इसमें राम जी की भी कथा है, वराह भगवान की कथा है, वामन भगवान की कथा है, यहाँ तक कि हमारे साक्षात नरसिंह भगवान की भी कथा है। अन्य भगवान के जितने भी अवतार हैं सबकी कथा है। अब बात आती है कि कृष्ण कथा को क्यों महत्वपूर्ण दिया है। तो देखिए, जब दशम स्कंद का प्रारंभ होता है, यहाँ पे शुरुआत होती है, तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया, क्या? कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो, यानी कि यहाँ पर परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, आपने राम जी की कथा तो बहुत शॉर्ट में सुना दी, सूर्यवंश की वंशावली बड़ी शॉर्ट में सुना दी, लेकिन अब बारी हमारे भगवान श्री कृष्ण की है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा विस्तार में सुनाइए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कथा थोड़ा विस्तार में सुनाई गई है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल कृष्ण कथा है। जी, जैसा कि कलयुग चल रहा है, अभी कहते हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण को पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो, तो किस तरह से कलयुग में अपने आप को अध्यात्म से जोड़ा जाए? देखिए, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कलयुग में किस प्रकार से भजन करें, किस प्रकार से कीर्तन करें, तो कलयुग में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप अगर बड़े बड़े यज्ञ करो। कहते हैं ना, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, यानी कि बड़े बड़े योगी मुनि तपस्या करते रह जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते रह जाते, लेकिन फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते थे। किसमें? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। इन तीनों युगों में इतनी भगवान की हम लोग वो पूजा करते थे, आराधना करते थे, लेकिन फिर भी भगवान इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होते थे। लेकिन कलयुग को देख लीजिए, कलयुग कैसा है? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, यानी कि यहाँ पर केवल भगवान का नाम मात्र लेने से, नाम संकीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर हम वर्णन करें कि युग क्या है, सबसे पहले तो हम युग समझेंगे। देखिए, हमारे यहाँ मनवंतर होते हैं, एक कल्प होता है। कल्प का मतलब होता है एक कल्प में होते हैं 14 मनवंतर। 14 मनवंतर का मतलब क्या है? एक मनवंतर में होते हैं 4 युग। कौन कौन से युग होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग होते हैं, इसको कहते हैं एक मनवंतर। तो इन युगों में, यानी कि हर एक मनवंतर में भगवान अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन अवतार केवल जब वो लेते हैं तो जो पूर्ण अवतार होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं राम और एक होते हैं कृष्ण।
और बाकी जो अवतार होते हैं वो कैसे होते हैं, एक होता है अंशावतार, एक होता है आवेशावतार, एक होता है कला अवतार और एक होता है पूर्ण अवतार। ये 4 प्रकार के और कई प्रकार के अवतार भी होते हैं। तो बाकी अवतार तो होते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन जो राम और कृष्ण का अवतार है ये है पूर्ण अवतार, यानी कि पूर्ण रूप से जो आते हैं वो ही केवल राम है और ये हर मनमंत्र में आते हैं। तो कलयुग में सबसे ज्यादा कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए वास्तविक में आजकल लोगों ने ये सब बना दिया है कि इनको पूजो तो बाकियों को मत पूजो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति बड़ा ही सुंदर वैष्णव था, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर भक्ति करता था, खूब उनका पूजन करता था, लेकिन बड़ा ही गरीब था। तो उनका एक मित्र आया, वो शैविक था, यानी कि शिव जी को मानने वाला था। तो वो उनके पास आया और उनसे आकर के कहने लगा, अरे तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? अरे इनसे बड़े तो हमारे भोले बाबा हैं, जिन्होंने स्वयं पूतना के कालकूट विष से बचने के लिए भोले बाबा को ध्यान किया। तो सोचो, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? ऐसा कह करके क्या क्या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। तो उनके भी मन में ये बात भर गई, वैसे बात तो सही है, आज तक मैं इनकी इतनी पूजा करता आया और ये सुनी नहीं है हमारी। तो क्या किया, अगले दिन महाराज बड़ी सुंदर एक शिवलिंग लेके आया है, अपने घर पे लाकर के विराजमान किया और ठाकुर जी को अलग एक कोने में रख दिया। अब जैसे ही उसने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का धुआं जितना था उड़ उड़ करके हमारे ठाकुर जी के पास जाने लगा। अब उसके मन में आया कि अच्छा, इनको लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको जलन हो रही है, इसलिए क्या कर रहे हैं कि इनका जो धुआं है वो सारा अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको अलमारी के अंदर बंद कर देता हूँ। तो उठा करके ठाकुर जी को अलमारी के अंदर बंद कर दिया। अब धुआं कहाँ से जाएगा? अब लेकिन महाराज क्या होता है कि जो धुआं है वो जाकर के अलमारी में जाने लगा। अब उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि बताओ, आज तक मैं इनके बारे में इनको इतना पूछता था, इतना सब कुछ करता था, तब तो इन्होंने ऐसा कोई लीला नहीं करी। आज मैं भोले बाबा को लेकर के आ गया हूँ तो इनको इतनी ईर्ष्या हो रही है, इतनी जलन हो रही है कि अब सारा धुआं अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये बात सोच करके उसने अलमारी खोल करके ठाकुर जी को डांटना प्रारंभ किया। इतने में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि एक बात बता, तुझे आज तक तो ये लगता था कि मैं मूर्ति हूँ, तुझको तो ये भी नहीं लगता था कि मेरे को ईर्ष्या भी होती है, मेरे अंदर कोई प्राण भी है? अब तक तो तू केवल ये सोचता था कि केवल मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ, और आज तुझे ये लगने लगा कि मेरे अंदर जलन है। वैसे तो जलन नहीं है, लेकिन तुझे आज जाकर के ये फील हुआ है कि मेरे अंदर भी फीलिंग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान कोई भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि किस देवता को पूजे। अगर आप शिव जी को पूजोगे तो भी आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ठाकुर जी को पूजोगे तो भी आपको शिव जी मिल जाएंगे। अब हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने इतने सारे अवतार क्यों रखे? जी बिल्कुल, क्यों अवतार रखे? बिल्कुल। तो देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा सत्य जो बात अगर हम कहें कि भगवान ने इतने अवतार क्यों रखे, अगर आपसे कहा जाए, एक आटा है, आटे से आप लपसी भी बना लेते हो, बिल्कुल, पूड़ी भी बना लेते हो, पराठे भी बना लेते हो, और कई प्रकार के व्यंजन आप बना लेते हो, रोटी भी बना लेते हो। सबका स्वाद एक सा होता है या अलग होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। अलग होता है ना, लेकिन तत्व क्या है? आटा तत्व एक ही है, आटे से ही सब कुछ बन रहा है। उसी तरीके से भगवान एक है, लेकिन भगवान के स्वरूप अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? अब कोई चाहता है कि हमारे ठाकुर जी, मैं जिनको पूजना चाहता हूँ वो थोड़े छैल छबीले नटखट टाइप के हो, ठीक है, तो उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया। कोई चाहता है कि नहीं भैया, हमारे भगवान तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा में रहने वाला हो, तो उससे किसका लिया? साक्षात श्री राम जी का लिया। कोई चाहता है कि नहीं प्रेम स्वरूपा हो, तो हमारे किशोरी जी का अवतार लिया, राधा रानी का लिया। कोई चाहता है कि नहीं भैया, हमारे तो फक्कड़ फकीर जैसे बाबा जैसे हैं, तो कौन हुए? साक्षात हमारे भोले बाबा जैसे हुए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान ने यहाँ पे जितने भी अवतार लिए हैं अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए लिए है। जिस तरीके से, अब आप समझिए, जैसे हम कहते हैं ना कि आप वही जॉब करो जो आपको प्यारी हो, बिल्कुल, जिसमें आपका मन लगे, उसी तरीके से यहाँ पर इष्ट भगवान ने अलग अलग क्यों बनाए हैं? इष्ट भगवान, आपने कई बार इंटरव्यू में चर्चा की, इष्ट भगवान क्या है? इष्ट का मतलब होता है, देखिए भगवान तो कई हैं, मानिए सबको, बिल्कुल, पूजिए सबको, लेकिन एक इष्ट का मतलब होता है एक ऐसे प्रमुख देवता जो कि गुरुजनों के द्वारा दिए जाते हैं। तो
वो प्रमुख जो देवता होते हैं उनको पूजना चाहिए, मतलब एक वो अपने ऐसे होने चाहिए कि हाँ यही सब कुछ है, बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरों का अपना अपमान करें उनको, लेकिन मुख्य हमारे रूप से पूजना चाहिए, जैसे कि हमारी एक ठौर रहे, एक मतलब जिससे हम लोग अपना ध्यान लगा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पूछा कि मतलब भगवान पे अवतार क्यों रखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपको जॉब प्यारी होती है वही करनी चाहिए जिसमें आपका मन लगे। उसी तरीके से जब आपको आपकी पसंद के भगवान मिलेंगे जिसमें आपका ध्यान लगेगा। तो ब्रश प्रिया किशोरी जी ध्यान लगाने के लिए क्या करती हैं? ध्यान लगाने की जी, तो कैसे देखिए, अपना फोकस कंसंट्रेशन किस तरह से हासिल करती हैं? देखिए ये तो वैसे वास्तविक में कहा जाए तो ये तो गुप्त बात हो जाती है। आज के टाइम में लोगों की कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है, अपने आप को एक जगह एकत्रित नहीं कर पाते हैं, अपने ध्यान को एकत्रित कर पाए। उसके लिए तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा अगर इसका मेडिसिन चाहिए तो वो केवल मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज अ की ऑफ सक्सेस, अगर वास्तविक में कहा जाए तो मेडिटेशन से बड़ा कुछ है ही नहीं। आप मेडिटेशन लगाइए, आपको अगर आपका माइंड का ये कंसंट्रेशन ना बढ़े तो फिर नहीं होगा। हमारे यहाँ क्यों इतना मेडिटेशन को कहा जाता है, हम लोग ओम की वो करते तो हैं। मेडिटेशन करने के कुछ टिप्स बता सकते हैं आप? देखिए मेडिटेशन अगर करना है तो कई लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे पहले जाकर के भगवान को डायरेक्ट जाकर के पूजने लगते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले तुरंत भगवान को नहीं करना, क्यों? क्योंकि भगवान एक बहुत ही बड़ी अथॉरिटी हो जाती है, बहुत बड़ी पावर हो जाती है। और जब जैसे ही हम लोग भगवान को मतलब पूजने के लिए बैठते हैं तो तुरंत क्या होता है, हमारा ध्यान भटकता है। हम जैसे भगवान के बारे में सोचते हैं फिर हमको कोई दूसरी बात याद आ जाती है, हमारे घर पे गैस रखा है, हमारे घर पे ऐसा सामान रखा है, वो बर्बाद हो रहा है, ये सब चीजें याद आएंगी, भगवान याद नहीं आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत हाईएस्ट पावर हो जाती है, हाईएस्ट अथॉरिटी हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर आपको भगवान में ध्यान लगाना है तो उससे पहले किसी अनयूजुअल थिंग के बारे में सोचिए। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेयर ले लें, चेयर में तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर आप ध्यान लगाओगे केवल चेयर में आपका ध्यान जाएगा कि चेयर क्या है, कैसी है, क्यों है, तो उसमें क्या है, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। लेकिन भगवान क्या है, बहुत बड़ी चीज पड़ जाती है। जब आप धीरे 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 एक चेयर पे ध्यान लगाना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही क्या होगा, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ कि एक बार बड़ी ही सुंदर एक कथा आती है कि एक किसान गया संत के पास, जाकर के संत से बोला कि महाराज मैं भगवान में ध्यान लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरा ध्यान लगता नहीं। कहता मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता मेरा? तो संत महात्मा ने एक ही चीज पूछी कि तुमको सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है, सबसे सुंदर क्या लगता है? जो ये बात सुना तो किसान कहने लगा कि महाराज मुझको अपने भैंस के सींग प्यारे लगते हैं, मेरे घर में भैंस बंधी हुई है और उसके सींग जब भी देखता हूँ मुझे ऐसा कैसे घुमावदार उसके सींग, कितने सुंदर सींग है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि इतने घुमावदार सींग है तो वो कितने ज्यादा सुंदर है, मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। तो जब ये बात संत ने सोची तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब तुम 1 साल तक उसी सींगों का ध्यान रखो। उसने, उस व्यक्ति ने, उस किसान ने उन सींगों का इतना ध्यान दिया कि 1 साल बाद जब वो संत उस किसान के पास गए और पूछा कि तुम कैसे हो, तो वो व्यक्ति कहने लगा महाराज थोड़ा दूर हो जाइए, मेरे सर पे सींग है। यानी कि उसको वो चीज फील होने लगी। अब 1 साल की मेडिटेशन उसकी इतनी ज्यादा मतलब पावरफुल हो गई है कि उसको वो चीज इतनी फील होने लगी कि उसके सर पे है। तो यही चीज के फिर संत ने समझाई कि सोचो कि जब भैंस के सींग तुम्हें इतने सुंदर लग रहे हैं तो सोचो जिसने उस सींगों को बनाया यानी कि परमात्मा, वो कितना सुंदर होगा। तब जाकर कहते ना कि नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। खुद वृंदावन की वासी हो और वृंदावन में एक निधि वन है जहाँ पे कहते हैं कि स्वयं कृष्ण जी और राधा जी रासलीला करने आते हैं। तो और वहां पर उनकी रासलीला को कोई देखते हुए कोई देख लिया, गलती से भी छिपकर देखने की कोशिश की, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उस बात में कितनी सच्चाई है? तो जैसा कि आजकल की जो यूथ है वो रास के बारे में काफी गलत सोचती है कि ये महारास क्या है। भगवान ने ये रासलीला क्या सोच करके की थी, लेकिन यूथ ने क्या सोच लिया।
आजकल की यूथ सोचती है कि दे आर जस्ट काइंड ऑफ लव वर्ड्स, बस ऐसा नहीं है। हमारे ब्रज में जब रास हुआ था तो रास में कितनी गोपियां आई थी इसका कोई अंदाजा नहीं है। श्री रासेश्वरी हमारी श्री किशोरी जी के साथ 33 सखियां आई थी, और वो 33 सखियां अपने साथ कैसे कैसे सखियां आई थी, कोई 10,000 लाया, कोई 20,000 लाया, कोई 30,000 लेके आया, कोई 16,000 लेके आया, यानी कि कोई गिनती नहीं बताइए कि कितनी गोपियां आई। और जितनी गोपियां थी कितने कितने साल की थी, 5 साल से लेकर के 150 साल तक की वहां पे गोपिकाएं मौजूद थी। तो आप सोचिए, 5 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, 50 साल की हो गई और 150 साल की बूढ़ी हो गई, क्या वहां पर किसी भी प्रकार की काम भावना हो सकती है? उस समय पर हमारे भगवान श्री कृष्ण 9 साल के थे जब रास किया था। 9 वर्ष की अवस्था के बालक में किसी भी प्रकार का काम भावना आ सकती है? तो खुद सोचिए कि महाराज क्या था। वास्तविक में अगर महाराज को अगर हम परिभाषित करें कि क्या है, तो देखिए, परमात्मा का आत्मा से मिलन, इसी को हम महाराज कहते हैं। अब बात की जाए कि निधिवन क्या है, निधिवन के बारे में इतना सुनते हैं, तो देखिए वास्तविकता में जो निधिवन है वहां पर क्या हुआ था। निधिवन में साक्षात हमारे ठाकुर निकुंज बिहारी श्री हरदास के दुलारे हमारे ठाकुर बाकी बिहारी लाल वहीं पर प्रकट हुए। स्वामी श्री हरदास महाराज जी ने अपने गायन के कला के द्वारा साक्षात हमारे बिहारी जी और हमारे ठाकुर श्री राधा रानी सरकार को, दोनों को ही प्रकट किया है। तो ये है हमारा साक्षात निधिवन। ये निधिवन है जहां पर हम लोग सुनते हैं कि रास होता है, अरे वहां पर साक्षात रास नहीं, वहां पर साक्षात हमारे बिहारी जी रोज दर्शन करने जाते हैं। निधिवन में साक्षात हमारे ठाकुर श्री बाकी बिहारी लाल वहां पर नित्य लीला करने जाते हैं। और वास्तविक में कहा जाए कि अगर आप ब्रज में जाओ तो क्या करो, लोग क्या करते हैं, निधिवन की रच को लेकर के आ जाते हैं। कहीं मंदिर में जाते हैं तो उसकी रच को उठा करके ले जाते हैं। तो देखिए, ब्रज रज ले जाने को कहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहाँ की रज हमको लेकर के नहीं जाना चाहिए। ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्यों? देखिए, ये रज कौन है, यहाँ पर इतना सुंदर भागवत जी में वर्णन दिया गया है कि जब सुरस्त्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पर जब ब्रह्मा जी के पास सारे देवी देवता गए हैं और पूछने के लिए गए हैं कि आप ये बताइए कि भगवान अवतार कब ले रहे, तो तुरंत ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप लोग तुरंत जाकर के ब्रजमंडल में बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि साक्षात ठाकुर जी महाराज आ रहे हैं। और सुरस्त्रिया मतलब अकेले मत जाना, अपनी स्त्रियों यानी कि अपनी अपनी देवियों को लेकर के जाना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी साक्षात श्री राधा रानी सरकार के साथ वहां पर प्रकट होने वाले, लीला करने वाले। तो यहाँ की जो ब्रज है, यहाँ की जो रज है, यहाँ के जो वृक्ष है, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात कोई बहुत बड़े बड़े देवी देवता है। और ये जो कण है, यहाँ के जो कहते हैं ना कण क्या है, ये कण जो है ना, एक बहुत बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, एक कण बनने के लिए न जाने कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, तब जाकर के यहाँ के वृक्ष के कण बनते हैं। और लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठा करके और किसी दूसरी जगह ले जाते, तो क्या करते हैं, एक प्रकार से उनकी तपस्या भंग होती है, तो अपराध उनको ही लगता है। इसलिए ये बात का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ब्रज का मतलब क्या है, ब्रज हमारा 84 कोस में फैला है। 84 कोस। और आप भी 84 कोश यात्रा अक्सर कराती हैं जी। तो 84 कोस क्या है 84 कोश यात्रा? हाँ, तो एक कोस यानी कि पहले के टाइम पे किलोमीटर नहीं चलता था, पहले कोस चलते थे। एक कोस में 3 किलोमीटर होता था, तो 84 कोस का मतलब है 252 किलोमीटर, यानी 252 किलोमीटर में हमारा ब्रजमंडल फैला हुआ है। और इसी ब्रजमंडल में हमारे ठाकुर जी ने नित्य निकुंज लीला की है। सुधा अमृत और अमृत कथा में क्या अंतर है? देखिए, कई लोगों में प्रश्न आता है कि सुधा अमृत क्या है। जो हम लोग आज इतना सुंदर दिव्य महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं?
आपने ये कथा तो सुनी ही है कि देवताओं में और असुरों के बीच में जब मंथन हुआ था, काफी सुंदर मंदरांचल पर्वत को लेकर के, वासुकी नाग को बांध करके, काफी सुंदर कच्छ भगवान के ऊपर धारण करके, और मंदरांचल पर्वत से जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से जो अंतिम में जो रत्न निकला है वो धन्वंतरी भगवान निकले हैं, और धन्वंतरी भगवान अपने साथ अमृत का कलश लेकर के निकले। उस कलश को लेकर के क्या कहते हैं कि ये इस अमृत को पीने के बाद कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। उसको हम अमर कहते हैं ना कि तुम तो अमर हो गए, तो ये वो अमृत था। तो इसी अमृत की जो कुछ बूंदे हैं वो जाकर के प्रयागराज में, और कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 4 स्थानों पर गिरी, तो कुछ बूंदे जाकर के गिर गई, जिसके कारण आज भी हम लोग कौन से वो 4 स्थानों पर गिरे? एक तो हमारा साक्षात हरिद्वार हुआ, एक हमारा प्रयागराज हुआ, एक हमारा नासिक हुआ, चौथा हमारा उज्जैन। तो इसीलिए जो अभी ये कुंभ जो लगा हुआ है प्रयागराज में, तो वहां पर उसमें कौन सा समुद्र मंथन गिरा जो वहां पे 144 साल बाद उसको महाकुंभ कहा गया है? तो इस कुछ योग ऐसे बनते हैं, कहते हैं ना कि आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है, तो उसी प्रकार से ये जो योग है वो इतने सालों बाद बना है। यानी कुछ हमारे तारामंडल ऐसा है, ये हमारे तारामंडल इस प्रकार से एकत्रित हुए हैं कि ये केवल इतने सालों के बाद लगा है। इसलिए ये जो अमृत की जो बूंदें हैं ये उभर के आती हैं। इसलिए कहते हैं कि इस जो त्रिवेणी में, इस मतलब प्रयागराज में ये जो कुंभ हो रहा है, इसमें जो भी स्नान करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। क्या किस तरह के पाप होते हैं जो हम लोगों के मिट जाते हैं नहाने से, डुबकी लगाने से? देखिए, कहने को तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या गंगा मैया में जब हम लोग स्नान करते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं। शरीर का पाप मिटता है क्या मन का पाप मिटता है? वास्तविक में एक बात बताएं, अगर हम लोग सोचे कि गंगा मैया वास्तविक में किसी को ताड़ती हैं, तो एक बात बताइए, उसके अंदर तो मछलियां भी रह रही हैं, बिल्कुल, मगरमच्छ भी रह रहे हैं, बिल्कुल, वो क्यों नहीं तर पाए अभी तक? बिल्कुल। तो उसी प्रकार से जब हम किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, किसी चीज को मानते नहीं हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो वो चीज हमारे ऊपर क्यों मतलब लागू होगी, हमारे ऊपर क्यों प्रभाव डालेगी? वो प्रभाव तभी डालेगी जब हम उस पर विश्वास करते होंगे, जब उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। एक हमारे गुरुदेव एक ऐसी कथा सुनाते हैं कि एक बड़े सुंदर ऋषि मुनि थे, वो हरिद्वार में नहाते हुए सभी लोगों से पूछने लगे कि तुमने कितने पाप किए। नदी में नहाते हुए आ रहे हैं और उन्हीं से तभी पूछा गया है कि तुमने कितने पाप किए, तो कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे पा रहा है। सबको लग रहा है पता नहीं हमने कितने पाप किए, हम लोग गिन नहीं पा रहे। सभी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इतने में एक व्यक्ति दिखा जिसने बोला कि मैंने एक भी पाप नहीं किया। जब ये बात ऋषि मुनि ने सुनी, उन्होंने कहा कि तुम्हें इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताइए, भले ही मैंने 1000 पाप किए लेकिन अभी मैं गंगा में कौन कौन से काम करने से वो हमारा पाप कहलाता है? देखिए, क्या है पाप पुण्य? एक प्रकार से अगर हम लोग कहें कि पाप पुण्य क्या है, तो देखिए, अगर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा मैया पाप धोती हैं, कौन से पाप धोती हैं? जो जानबूझ के किया जाए वो पाप कभी भी गंगा मैया नहीं धोती। लेकिन जो पाप हम लोगों से जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से हो गया है, जिसके बारे में हमको अनजाने में कहते हैं, हम लोग जानते नहीं थे लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं, उन्हीं पापों को हमारी गंगा मैया धोती हैं। सभी पापों को धो देंगे तो फिर संसार में पापी ही कौन रहेगा? तब तो सारे जेल के कैदियों को निकालकर महाकुंभ में स्नान करा दिया जाए, डुबकी लगा दी जाए, उनके भी पाप नष्ट हो सकते हैं। नहीं, इसलिए तो आपसे कहा जो गलती से किया जाए, है ना, कि हमसे अनजाने में गलती से किसी का मर्डर हो गया या फिर हमने किसी के घर में चोरी कर लिया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का रियलाइज हो गया, तो इसलिए हम अपने पाप को मिटाना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए, संसार में बहुत बड़ी चीज चलती है, वो है कर्म। हम लोग कौन होते हैं? देखने वाला तो ऊपर वाला है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो उसी प्रकार से उसने जो भी अपने पाप किए हैं वो अभी तो भुगत ही रहा है। कई लोगों को लगता है कि हम लोग यहीं पे भुगत के चले जाते हैं और नर्क स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो अलग भुगतते हैं, लेकिन नर्क स्वर्ग में जाके अलग भुगतते हैं। कैसे? अब किसी व्यक्ति को जब हम लोग FIR करते हैं तो पुलिस उसको यहाँ से मारती हुई ले जाती है ना, तो वो यहाँ पे भी भुगत रहा है, लेकिन फिर जेल में जाके अलग मारेगी।
तो वही चीज है, यहाँ पे भी उसको मारा जा रहा है, यहाँ पे भी वो भुगत रहा है, लेकिन उसको नर्क में जाकर के अलग से धोएंगे। क्यों धोएंगे? क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वच्छ होकर के फिर से अपना नया जन्म ले सके। तो कर्म बड़ा है या धर्म? देखिए, जो कर्म धर्म के लिए किया जाए वो बड़ा है। धर्म कैसे बनेगा? जब तक कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो धर्म कैसे बन जाएगा? समाज सेवा कर लो या आपका जुड़ जाएगा। क्या है कर्म और क्या है धर्म? देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके जीवन में राजयोग लिखा होता है, वो सोचते हैं कि हम लोग पलंग में लेटे लेटे हमको तो अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, आपको वो पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान आज के ने- समय में लोग सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं कि ऐसा हमें कि नहीं। हमारी किस्मत में, कहते हैं कि किस्मत में जो हमारे किस्मत में लिखा होता है उसको विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है। एक चीज बताइए, अगर ऐसा होता तो संसार में फिर लोग मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? भगवान ने गीता में क्या उपदेश दिया है कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़िए। लेकिन कर्म करने के बाद भी तो फल नहीं मिल रहा है, तो लोगों को निराशा मिलती है। देखिए, यहाँ पे ना दो प्रकार के प्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं। कई जगहों पे तो किस्मत काम करती है और कई जगहों पे हमारी मेहनत काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कालिदास जी को ले लें, कालिदास जी की कथा हम सभी लोग जानते हैं कि उनके हाथों में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं। बिल्कुल बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने उनसे कह दिया था कि तुम कभी जीवन में कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। और इसी क्रोध में आकर के उनकी पत्नी भी उनको छोड़ के चली गई थी, त्याग करके चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपनी, कहते ना, होप नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर भी उसके ऊपर मेहनत की, बल्कि अपने हाथों में लकड़ी से वो रेखा बना ली। तो क्या आज हम लोग कालिदास जी का नाम नहीं जानते? तो कहने का क्या तात्पर्य है, भले ही हम लोग अपनी किस्मत के पीछे छोड़ दें, अब लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। अगर कालिदास जी भी ये सोच के बैठ जाते कि मेरी तो किस्मत में लिखा है कि मेरी पढ़ाई ही नहीं है, मेरी रेखा ही नहीं है, तो मैं क्यों पढूं, तो क्या आज हम उनका नाम जानते? तो उसी प्रकार से हर चीज किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती, और कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर किस्मत काम करती है। किस्मत क्या है? किस्मत, देखिए, अगर वास्तविक में कहा जाए कि किस्मत क्या है, तो देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक सेठ के यहाँ पर गए, वो सेठ बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है कुर्सी पे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पास बैठे हुए, अपने आप बैठे बैठे पानी आ रहा है, चाय आ रही है। नीचे एक नौकर है, दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात अपने शरीर को पसीज रहा है, इतनी मतलब मेहनत कर करके इतने मुश्किल से 2 रोटी उसको नसीब हो रही है। ये होती है किस्मत। यहाँ पर किस्मत काम कर रही है कि वो सेठ कुछ नहीं भी कर रहा है, कुछ बस बैठा हुआ है, फिर भी उसको क्या है, बिना बोले अपने आप ही पैसा मिलता जा रहा है। लगता है कि कालिदास जी ने अपने हाथों से, लकड़ी से अपनी तकदीर बना दी, तो हर कोई सोचेगा ना कि हम भी लकड़ी से वैसी तकदीर बना दें, वैसी किस्मत लिख लें, हमारे पास बैठे को सब कुछ मिल जाए। तो उसके लिए क्या? देखिए, हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बिल गेट्स का एक बहुत सुंदर कथन सुनते हैं, वो एक क्योट कहते हैं, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, है ना? यस। तो उसी तरीके से आप क्या एक कागज पर एक किस्मत के भरोसे और अपना फ्यूचर छोड़ दोगे? नहीं ना। अगर हम कहें ज्योतिष के बारे में कि हम लोग कुंडली में ऐसा लिखा है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। कुंडली बदलती है, किस्मत बदलती है। हम लोग जैसी जैसी मेहनत करते जाते हैं, वैसे वैसे अपना भाग्य भी चेंज करते जाते हैं। ये साफ साफ हमारे ज्योतिष में लिखा हुआ है। ज्योतिष अपने आप बदल जाती है, जैसी आप मेहनत करोगे वैसा ही करोगे। और पहली बात, हम लोग कहते हैं कि किस्मत क्या है, कर्म ही किस्मत बनाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। हम लोग इस जन्म में जो कर रहे हैं, जो भी हम लोग, एक कहते हैं ना, एक सेविंग टाइप की, जितने ये पाप पुण्य, आपने पूछे पाप पुण्य क्या है, ये पाप और पुण्य हमारी सेविंग का काम कर रहे हैं। जितने भी दुख हम भोग रहे हैं वो हम पिछले जन्मों के भोग रहे हैं। जितना भी सुख, जितना भी पैसा हमको मिल रहा है, वो भी पिछले जन्मों से रिलेटेड ही मिल रहा है। लेकिन आज के टाइम में लोग पैसा कमाने के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे हैं, इतना ज्यादा भाग रहे हैं, लोग सब कुछ भूल गए। कुछ ऐसा मूल मंत्र कि जिससे लोगों के पास पैसे भी टिके और कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा सके। कई जगहों पे अगर मैं कहूँ कि पैसा आना, तो ये तो देखिए, अब मैं इस बात में कहूंगी कि किस्मत का काम है। पैसा ज्यादातर किस्मत से ही मिलता है। जैसे अब वही वाली बात होगी कि अगर आप कर्म किस्मत के लिए करोगे तो वो चीज आपके काम में आ सकती है। लेकिन दूसरी बात,
अगर एक फिर भी अगर उपाय बताया जाए अपनी हम्म। तरफ से, अगर मैं बताऊं, तो आप ये कर सकते हो कि जो भी आप कमा रहे हो, चाहे 100 रुपए कमा रहे हो, चाहे दिन के हिसाब से कमा रहे हो, चाहे आप महीने के हिसाब से कमा रहे हो, तो आप उसका 10% आप अपने अपने ठाकुर जी के लिए निकालिए। मतलब उसका कुछ भाग जब निकालिए, जब वो इकट्ठा हो जाए, तो या फिर आप उसका भंडारा करवा सकते हैं, या फिर किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण का भोज करवा सकते हैं, या फिर आपके घर में भगवान है, छोटे से लाला हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, तो उनके लिए आप सुंदर सुंदर पोशाक ला सकते हैं, पगड़ी लेकर के आ सकते हैं, खूब सुंदर आभूषण लेकर के आ सकते हैं। लेकिन वो कार्य जो होता है, जो पैसा है जो आप ठाकुर जी के लिए लिए हो, उस पैसे को आप साक्षात किसी सत्कर्म में लगाइए। एक बात और, कभी आपके पास कमी पड़ जाए कि हमारे पास पैसे नहीं बचे, लेकिन ठाकुर जी के पास है, हमने जो 10% बचाया था वो सेगमेंट ठाकुर जी के पास है, तो क्या हम वो ले सकते हैं? हाँ, हम वो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप पूरी बात सुनिए कि लेकिन हमने तो उसे चढ़ा दिया। हमने वो अभी चढ़ाया है। जैसे कई बार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसी होती परिस्थिति कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान के पास जो चढ़ाया है उसके वो अभी वो हमारे पास सेव है, तो अभी हम क्या करेंगे, उस पैसे को हम ले सकते हैं ठाकुर जी से उधार मांग के। जिस दिन हमारे पास पैसा आएगा, हम वापस ठाकुर जी को ब्याज के साथ वापस कर देंगे। ये आप कर सकते हैं। वेद क्या है? वास्तविक में अगर पूछा जाए कि वेद क्या है, तो वेद साक्षात भगवान है, वांगमयी मूर्ति। वांगमयी मूर्ति कहते हैं ना, वांगमयी मूर्ति इत्येषा कृष्ण एव ही। इसका मतलब क्या होता है? वेद साक्षात भगवान है, यानी कि जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती, मेरा मुख इतना छोटा है उनको बोलने के लिए कि अगर उनके बारे में कि वेद कहाँ से आए। बिल्कुल। अगर मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से समझाऊं कि वेद कहाँ से आए, तो देखिए, सर्वप्रथम हमारे भगवान श्री विष्णु है, उनके हिसाब से भगवान श्री विष्णु जी के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने जब आए तो उनके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आया, वो आया को हम, यानी कि मैं कौन हूँ। उन्होंने चारों तरफ मुड़ करके देखा तो उनके 4 मुख आ गए। जब उन्होंने 4 मुख देखा, फिर उनके मन में ये आया कि शायद मैं कमल से निकला हूँ, तो कमल की जो डंडी है उसके नीचे जाके कोई तो छोर मिलेगा। बिल्कुल। तो खूब नीचे गए हैं, लेकिन उनको फिर भी कोई छोर मिला नहीं। जब वो वापस से ऊपर आए तो 21वां अक्षर ता और 16वां अक्षर प, ये तप सुनने को मिला कि ब्रह्मा जी पहले तप करिए, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। तो कई हजारों वर्षों तक उन्होंने ये तपस्या की। जब तपस्या की, तब जाकर के चतुश्लोकी भागवत निकली। क्या निकली? चतुश्लोकी, यानी कि चतुश्लोकी भागवत कोई साधारण श्लोक नहीं है, ये साक्षात भगवान है, जिन्होंने यहाँ पर 4 प्रकार के तत्वों का वर्णन दिया है। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, माया तत्व और जगत तत्व। ये 4 तत्वों का यहाँ पर वर्णन दिया गया, और इन्हीं 4 श्लोकों से, चतुश्लोकी भागवत से ही हमारे वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया। पहले वेद एक ही था, लेकिन लोगों को ये पढ़ने में क्लिष्टता होती थी, इसलिए हमारे जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने इसका विभाजन किया 4 भागों में। आप देख रहे हो कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कुछ होता नहीं, बस डिप्रेशन में चली जाती है, कुछ होता नहीं, बस आत्महत्या करने की ओर चली जाती है। तो इन सब चीजों के लिए कैसे बचा जाए? देखिए, दुनिया में ना एक बहुत बड़ी चीज है, वो है उम्मीद। लोग आजकल क्या कर लेते हैं, उम्मीद पहले कर लेते हैं, काम बाद में करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग उम्मीद पे इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि जब वो हमारी चीज होती नहीं है तो हम इतना ज्यादा टूट जाते हैं कि हमको लगता है कि वो चीज तो होनी थी, तो वो हुई क्यों नहीं। बिल्कुल। तो पहली बात तो उम्मीद ही मत रखिए। जब आप उम्मीद रखना बंद कर दोगे तो अपने आप ही क्या होगा, आपको ये जो डिप्रेशन है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब उम्मीद ही नहीं थी, हमको कोई टेंशन ही नहीं थी, तो कोई बात ही नहीं रही। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर मैं अपने हाथों में फूल लूं, बिल्कुल, ध्यान से सुनिए, आप ही बताइए इसको, अगर मैं अपने हाथों में फूल लूं, लगभग कितने वेट होगा इसका? 1 ग्राम, 2 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम, इतना क्या होगा? कमल का फूल अगर 5 से 10 ग्राम। हाँ, मतलब वही, अगर मैं हल्के फूल की बात कर लूं, ठीक है, 1 ग्राम वाले, बहुत, तो अगर मैं उसको लिए कम से कम 1 घंटा लिए रहूं, तो वही फूल कितने घंटे, कितना लगेगा मुझे, कितने किलो का लगेगा? भारी लगने लगेगा।
1 टन का लगने लगेगा, कम से कम 1000 टन का लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि कब मैं इसको छोड़ दूं, वही हाथ मेरा चोक हो जाएगा पकड़े पकड़े। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमारे संग कोई बात बीतती है, हम लोगों के ऊपर कुछ बुरा होता है, तो हम उस चीज को होल्ड करके बैठ जाते हैं। उसको हम छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत आएगी क्या? तो उसी तरीके से ये हमारी लाइफ इस फूल की तरह है। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे पकड़े रहते हैं कि हमको लगता है पहले स्टार्टिंग में तो हमको कम कम लगती है, लेकिन फिर हम उसके बारे में इतना सोचने लगते हैं कि वो हमारे दिल पे भारी होने लगती है। अब वो इतनी भारी हो जाती है कि अब वो, हम साइंस में कहते हैं लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो वो लैक्टिक एसिड क्या है, अब वो हमारे दिमाग में इस तरीके से जम जाता है, वो चीज़ ऐसी मतलब पूरी तरीके से अपना डेरा बना लेती है कि वो आप उसको फिर हटा ही नहीं पाते। आप ये बताओ कि आप एक स्टूडेंट भी हो, आप कथावाचिका भी हो, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से आप मैनेज करते हो? क्योंकि आपकी जो एज है ये पार्टी करने की उम्र है, मतलब बहुत लोग आज के जो युवा पीढ़ी हैं, ये यंग गर्ल्स हैं, वो लेट नाइट फ़ोन पे बातचीत करना पसंद करती हैं, ड्रिंक करना पसंद करती हैं, घूमना पसंद करती हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं। तो आपका कभी मन नहीं करता ये सब कुछ करने? देखिए, वैसे अगर मैं कहूँ कि मॉडर्न क्या है, तो मॉडर्न होना केवल आजकल हम लोगों ने मॉडर्न होने का मतलब ये बना दिया, वुमन एम्पावरमेंट का मतलब बता दिया कि शॉर्ट ड्रेसेस, राइट? ऐसा नहीं है। किसने बोला कि केवल शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाली ही वुमन एम्पावरमेंट होती है? अरे आप उनको देखिए जो हमारे थल सेना में है, हमारे इतने बड़ी बड़ी सेनाओं में जो लेडीज लोग बैठी हुई हैं, पुलिस में बैठी हुई हैं, जो हमारी रक्षा कर रही है, उसको वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं। बिल्कुल। तो जो चीज़ हम मॉडर्न लाइफ में करते हैं, जो हम लोग सिटी लाइफ में आजकल की जो देख रहे हैं, यूथ में देख रहे हैं, वही चीज़ हम लोग अपने जीवन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको, और वैसे भी ये हमारे जीवन पर आधारित है कि हम अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको केवल वृंदावन की अगर रज में अगर लोट-पोट हो जाए तो उसी में उनको सुकून मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको ड्रिंक पीने में आनंद मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान का चरणामृत जब तक ना मिले तब तक उनका भोजन नहीं हजम होता है। तो उसी तरीके से आप अपने आप को जैसा ढाल लो वो वैसे ढल जाता है। आज के टाइम में जो लोग अपनी टेस्ट के लिए नॉनवेज खाते हैं, और तो आपकी सोच से क्या ये सही है? देखिए, वैसे तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना ये कहाँ का न्याय है। देखिए, अगर मैं भागवत के हिसाब से बताऊं तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन बताया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि जो लोग अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं, तो उन लोगों को यमदूत ले जाकर के कुंभीपाक नामक नरक में ढकेल देते हैं। वहाँ पर क्या होती है, 10,000 योजन लंबी कढ़ैया होती है, जहाँ पर खौलता हुआ तेल होता है, और उसमें लोगों को बिल्कुल पूरी बना करके तला जाता है। कब तक तलते हैं? ये तब तक तलते हैं जितना उस जीव के, यानी कि जिस जीव को मारा है उस जीव के रोम है, बाल है, उतने सालों तक उस व्यक्ति को उसमें तला जाता है, भूना जाता है। अब आपको लगेगा कि एक बार तल दिया, अब उसको क्या ही दर्द होगा। ऐसा नहीं है, उसको फिर से वैसे ही यमदूत लेते हैं, फिर से उसको सिलते हैं, वापस से फिर से वैसे ही बनाते हैं, फिर से वापस से सही करते हैं और फिर से उसको फिर से तलते हैं। यानी कि ये दर्द आपको उतना ही होगा जितना इस शरीर में होता है, लेकिन आप मरोगे नहीं। कहोगे जो आज के टाइम में जो प्याज लहसुन खा रहे हैं, और हर बेसिक फूड में आजकल लोग अपने घर में इस्तेमाल करने लगे हैं प्याज लहसुन, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, प्याज लहसुन का अगर मैं कहूँ तो कोई प्याज लहसुन खाना कोई पाप का कार्य नहीं है, लेकिन आपको प्याज लहसुन खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये तामसिक भोजन है। ये जो हम लोग सुनते हैं कि शिव जी के सर से गिर गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यतः इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें से एक प्रकार से दुर्गंध आती है। हम लोग जब देखते हैं, आप जब लहसुन और प्याज को छोंकते तो वो एक अलग ही स्मेल होती है, जी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो नहीं खाता है उसके मुख से अलग ही बदबू आती है, ना उसका पेट साफ रहता है ना कुछ रहता है। तो ये क्या, अब कई लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी नई चीज को एब्जॉर्ब करती है तो वो जल्दी उसको मतलब सह नहीं पाती है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग कोई नए फल भी तो खाते हैं, नए फ्रूट्स खाते हैं, नई सब्जियां खाते हैं, वो तो हमको कभी इतना इफेक्ट नहीं करती जितना ये लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं?
क्योंकि तामसिक होता है, इसलिए मना किया जाता है। और बाकी जैसा कि हमारे ब्रज में प्याज लहसुन क्यों नहीं बनती, हमारे इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो हमारे ठाकुर को प्रिय नहीं है तो वो लोग हम भी नहीं खाएंगे। लोग कहते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को भगवान को नहीं छूना चाहिए, और आप खुद एक कथावाचिका हो तो आपको भी इन सब चीजों को फेस करना पड़ता होगा, तो इसमें कितना सच्चाई है? क्या सच में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ईश्वर के पास नहीं जाना चाहिए? देखिए, पहला तो ये जो प्रश्न है ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम लोगों को मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए। ये लोगों की पिछड़ी सोच है। लेकिन हमारे यहाँ पर वैदिक काल में हर चीज के पीछे रीजन बताया गया है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको एक साइंटिफिक रूप में समझाऊं कि क्यों नहीं जाना चाहिए, तो देखिए जो हमारे ब्लड का उस समय जो फ्लो होता है वो कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। बिल्कुल। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमको कैसी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है, अपवर्ड रहती है कि नहीं रहती है। तो उसी तरीके से जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो जो डाउनवर्ड है और जो अपवर्ड है वो जब व्यक्त करता है तो आपस में कोई ना कोई बीमारी बनाता है। आजकल जो हम लोग PCOS, PCOD इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां देख रहे हैं, क्या पहले ये सब थी? बिल्कुल भी नहीं। आजकल क्यों है? क्योंकि आजकल लोग नहीं मानते हैं। कई लोगों क्या कहते हैं कि किचन में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है, आप कभी भी ये ट्राई करके देख लीजिएगा, जब आप अचार छुओगे ना तो वो अपने आप ही खराब हो जाएगा। आप तुलसी को छुओगे, तुलसी अपने आप खराब हो जाएगी। तो ये साइंटिफिक रीजन है। उसी तरीके से आपको हमारे वेदों के अनुसार 3 दिन के बारे में बताया गया है कि 3 दिन नहीं जाना चाहिए। 2 बार अगर आपके बाल धुल जाएं तो फिर आप कार्य कर सकते हो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 दिन जो बताए गए हैं ये चंडिका का स्वरूप बताया गया है, चांडालनी का। क्यों बताया गया है? क्योंकि एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, कथा नहीं है वास्तविकता है, कि एक बार हमारे जो देवतागण हैं उनके जो गुरु हैं वो साक्षात है हमारे बृहस्पति जी। जब वो आए तो इंद्र ने उनका स्वागत नहीं किया, ना उनका सत्कार किया। तो जब सत्कार नहीं किया तो इस बात को सुनकर के हमारे जो साक्षात बृहस्पति जी हैं वो नाराज होकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जब तक देवताओं के कोई गुरु नहीं होंगे तो क्या होगा, ये राक्षस गण उन पे आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, विश्व रूप यानी कि ये हमारे दीति की पुत्री रचना नामक रचना और त्वष्टा मुनि, इनके पुत्र हुए सन्निवेश और विश्वरूप, ये 2 पुत्र हुए हैं। तो जो विश्वरूप थे इनके 5 मुख थे और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी भी थे, ब्रह्म ज्ञानी जिसको कहते हैं। तो इनको क्या बना लिया गया है, इनको साक्षात अपना गुरु बना लिया देवताओं ने। जब गुरु बना लिया तो जो ये हमारे विश्वरूप जी थे, इनका जो मामा पक्ष था वो कैसा था, वो साक्षात दानव वंश था, दैत्य वंश के थे। और इनका जो बाकी का जो पक्ष लगता था वो देवताओं का भी लगता था। तो हमारे यहाँ जब यज्ञ देते हैं ना, यज्ञ में आहुति देते हैं, तो आहुति देने से क्या होता है, देवताओं का बल बढ़ता है। तो जब यहाँ पर आहुति देते थे तो जो हमारे ये थे विश्वरूप जी थे, वो क्या करते थे, धीरे से जाकर के दैत्यों की नाम की भी आहुति दे देते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा मतलब दैत्यों का भी यहाँ पे बल बढ़ रहा था। तो ये चीज जब इंद्र ने देखी तो क्या हुआ, इंद्र ने उनके गले काट दिया, पूर्ण रूप से उनकी ब्रह्म हत्या हो गई। तो ये ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर लगी। तो जब ये ब्रह्म हत्या लगी है तो इस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 स्थानों पर विभाजित किया। 4 लोगों ने कहा कि हम इस चीज को लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लगती है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, और अगर इंद्र स्वर्ग में नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए 4 लोगों ने स्वयं कहा कि हम आपका ये जो ब्रह्म हत्या है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये 4 कौन कौन से स्थान है? सर्वप्रथम है सागर यानी कि समुद्र। समुद्र ने लिया झाग का, यानी कि जो समुद्र में झाग आता है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरा हुआ पेड़। पेड़ में आप देखते हैं हर पेड़ में से गोंद निकलता है, ये जो गोंद है ये क्या है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा है जमीन। जमीन ने लिया जहां पर बंजर जमीन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये साक्षात ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथी आगे आई स्त्री।
स्त्री ने क्या कहा कि आप मुझे ब्रह्म हत्या का एक भाग मुझे दे दीजिए। और ये ब्रह्म हत्या का जो स्वरूप आया, ये आया मासिक धर्म के रूप में। इस प्रकार से ये जो ब्रह्म हत्या क्या है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो ये हम लोग जब 3 दिन हम लोग इसके रूप में होते हैं, 3 दिन हम लोग ब्रह्म हत्या स्वरूप में रहते हैं। इसलिए आपको कोई भी पूजा के काम करने के लिए मना किया जाता है। आप इतनी कम उम्र में कथा कर रहे हो, तो आपके एक कथा का क्या फीस है? आप क्या चार्ज करती हो? देखिए, वैसे तो मैं वास्तविक में बताऊं तो कोई भी भगवान हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण रूप से कभी भी कोई चार्ज दे ही नहीं सकता, बिल्कुल क्योंकि वो साक्षात भगवान है, जी। उनका कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग पूछते हैं, तो मुख्यतः मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन जैसे हमारे साथ जो टीम जाती है, उन लोगों का भी तो घर चलता है, बिल्कुल। तो उन लोगों का चार्जेस लगता है, मैं कभी भी अपना नहीं मांगती। और जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं और आपको देख पा रहे हैं, उन श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपने मॉडर्न लाइफ को भी आप मेंटेन करिए। ऐसा नहीं है कि आप आज जो जीवन जी रहे हो उसको भूल जाइए। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान से सुनिए, अगर जिस प्रकार से अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए और पाकिस्तान तो परमाणु बम लेके जाए और हम लोग तीर कमान लेकर के जाए पुराने जमाने से, तो क्या लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो उसी तरीके से मॉडर्न होना, यानी कि समय के साथ बदलाव लाना, ये प्रकृति का नियम है। बदलना चाहिए, लेकिन जो हमारे संस्कार है उसको नहीं भूलना चाहिए। यानी कि हमारा जो आत्म तत्व है, यानी कि भगवान है, उनका भजन है, ये सब मत भूलिए। मॉडर्न बनिए, खूब बनिए, एक्टिवा पे जाइए, खूब दुनिया घूमिए, खूब जो करना है वो करिए। लेकिन जैसे कई लोग होते हैं कि तिलक नहीं लगाना चाहिए, ढोंग का स्वरूप होता है। कहते हैं ना, काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी न संशय, यानी कि नास्तिक वेदों के हिसाब से ये मंत्र का वर्णन किया गया है कि जो कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वो क्या होते हैं? पाखंडी होते हैं। लेकिन वास्तविकता में कंठी और तिलक क्यों धारण करते हैं? लेकिन देखिए, जिस प्रकार से एक शादीशुदा एक स्त्री होती है, वो मंगलसूत्र पहनती है, एक खूब सुंदर मांग में सिंदूर भरती है। क्यों भरती है? एक प्रकार से प्रतीक दिखाने के लिए कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। उसी प्रकार से वैष्णव भी ये सब धारण करते हैं, क्या दिखाने के लिए? कि हम अपने ठाकुर जी के पहले से हो चुके हैं। तो अगर आप अपने ठाकुर जी के पहले से हो चुके हैं, तो आपका आगे भविष्य को लेकर के आपकी क्या योजना है? क्या आप आगे चलकर विवाह करेंगे, या फिर सिर्फ अपने ठाकुर जी और भक्ति भावना में ही अध्यात्म की ओर ही आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, हमारे कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम भक्ति भाग में आ जाते हैं तो क्या हम लोगों को शादी करनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं करनी चाहिए? आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाएं सुनी होंगी, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की। इन लोगों ने भगवान की प्राप्ति करी, क्या उसके बाद शादी नहीं करी? बिल्कुल करें। शादी करी, उनकी खूब बड़ी वंशावली है। भगवान के जितने भक्त हैं उन्होंने शादी करी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि भगवान ने भी गृहस्थ जीवन में कदम रखा है। तो आप स्वयं सोचिए, जब भगवान स्वयं ये कह रहे कि विवाह करो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ पर 4 आश्रम है। केवल अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके भगवान को प्राप्त करोगे, तो भगवान को क्या लगता है? भगवान गृहस्थ मतलब यानी कि सन्यासी से ज्यादा जल्दी गृहस्थियों से प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, गृहस्थी और सन्यासी में क्या अंतर है? सन्यासी जब भगवान को भजता है, तो भगवान को तो लगता है कि देखो, ये तो इसके पास तो पूरा टाइम केवल मेरे लिए, इस पे कुछ और काम नहीं है। तो ये भज रहा है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन एक गृहस्थी, यानी कि घर के कामों में बिजी रहने वाला, अपनी दुकान चलाने वाला, बच्चों को देखने वाला, खाना खाने वाला, वो अगर थोड़ी देर के लिए भगवान को याद कर लेता तो भगवान खुश हो जाते हैं। क्यों? अगर आपको कोई बिजी शेड्यूल में से, और अगर आपको कोई प्रायोरिटी दी, तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरीके से भगवान गृहस्थियों से प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा क्या अगर आगे का प्लान है, तो ऑफकोर्स मैं
राधे राधे राधे। राधे। Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.